Now, today, we are standing at beginning of another thing. We stood at the beginning of preparation of CA Foundation together. We went deep into the syllabus, did cover everything. We did a lot of practice, and you people gave three set of mock tests back to back, one after the other. So done with that part. Now, today we are standing to discuss how CA Foundation Jan 2025 you guys need to approach. So preparation is something which is really very important, but the right execution is something that matters the most, because many a times it is found that people do prepare well, but they fumble at the end moment because of any XYZ reason, and they're not even able to perform as much they had prepared. So that is something that's not going to happen with us, that we underperform, but rather we need to perform even better than the preparation that you have put in, and even better than the mock test that you guys have given. So that is the purpose of this particular session that we have today. I hope that's very clear. So सबसे पहले I want all of you to have a big smile on your face. We'll handle it all. Need not worry and need not be like, just keep smiling. I'll tell you what to do and how to do. तो मुस्कुरा के दिखाओ पहले मुझे. I should be able to see your 32. Show me your 32 दांत. चल ठीक है मैम, बहुत मुश्किल से मुस्कुरा पा रहे हैं. देखिए, अब सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे चाहिए आप सभी बच्चों से बहुत सारी एनर्जी. अगर आपसे मेरे को एनर्जी मिलेगी तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आपके पास भले ही एक एक दिन का गैप होगा, भले ही आपके पेपर में 4 दिन बचे हैं सिर्फ, लेकिन आप ऑप्टिमल परफॉर्म कर पाओगे. तो इफ़ यू वांट दैट आई टेल यू ऑल दोस टिप्स एंड ट्रिक्स, देन डेफिनेटली आई वांट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू. तो सब लोग पहले मेरे को चैट में ये बात लिख लो, इफ़ यू आर क्लियर विद व्हाट आई एम सेइंग, आर यू ऑल एक्साइटेड. तो लिख के भेजो मेरे को क्लियर, इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर क्लियर विद इट and excited. Okay, all right, all right. और चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहनी है. अब सबसे पहले हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात से स्टार्ट करेंगे एंड देन वील गेट इनटू द सब्जेक्ट्स. लिखा है स्क्रीन पे, योर थॉट्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी. व्हाट यू थिंक you become. It might be a quote written on the screen in front of you right now, but my dear children, let me tell you that this is the fact. I have lots and lots of students who have actually faced a lot of problems during their CA journey. They had lot of issues in their family, and despite of that, they were able to clear their examination, CA foundation, then inters and their finals, and they have become chartered accountant. So I have shared with you lots of stories earlier also of my students and my colleagues and so on. Now today, you might have heard of this particular story as well, but I am going to tell you a story, a real thing of the year that has happened 2 years, 3 years back, 2022, when the entire nation was like just recovering out of COVID. And then there was some happy news with the headline titled like this in the newspaper: Auto driver's 20 years old son, 20 years old son has become chartered accountant. I mean, can you understand and imagine? 20 साल में इंस्टीट्यूट मेंबरशिप 21 साल में देता है एज पर द गाइडलाइंस. वो सब अभी बात की बात है, बट द बॉय has cleared the examination. And also I shared with you one instance जो कि बहुत recent अभी हुआ, जो result आया, that the son of a newspaper distributor became chartered accountant. I mean, what lesson we need to understand, it is that it's all in your thoughts. You might be in the worst possible situation or in the pathetic situation. You might not have that support that you need. And maybe your preparation might not have been as good as that of others. But the point is, if you feed in your brain, I'll be able to do it, I need not worry about it, I'll make sure 4 days that I have in my hand, they are super productive. The 3 hours that I get in the examination, I will not panic at any point of time. Whatever I know, I will at least make sure that I do that correct.
If I don't know something, that's a different matter, but the paper will 100% encompass those things which I know, and they will be sufficient enough that I will be able to clear. If you are feeding these thoughts in your brain, I am telling you, you will clear. You will clear. Might be कि तुम में से कोई ऐसा है जिसने पहले 2 3 4 अटेम्प्ट दिए हैं और नहीं निकला है. If you are thinking that earlier also I studied and something or the other happens every time, and I am standing with 180s and 170s and 190s, and I just don't know whether if the same gets repeated. So that is what you're feeding in your brain. So while you are revising these 4 days, I am telling you, you are not doing the things with a lot of efficiency, because in the brain, what is going on? I may do it right, I may not do it right. Even if I do it right, maybe the checker doesn't check it properly. And if the aggregate is a concern, और मैं किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बहुत से अटक गया तो जब आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट चल रहा है, सो द एनर्जी दैट यू आर using or the energy that you are giving while revising your accounts is not your best thing. So what I want you to do and promise yourself, if you have not even completed few chapters in different subjects, let's talk about accounts itself. Maybe there is somebody who hasn't done complete shares, or maybe there is somebody who has not done complete company itself, or maybe there is somebody who hasn't done partnership altogether. So I do understand that it is a big chunk that we have not done, but is it sufficient that तुम फेल ही हो जाओगे? No, 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 no. It's not that horrifying. It's not that horrifying. The balanced syllabus, please focus on that. That if I have not done partnership, for example, the rest of the syllabus is at least having 70% of the weightage. And even if I do that well with quality and do little bit of partnership, at least I'll be able to get somewhere like 60. And if I do that much, okay, fine, I'm able to handle accounts and get 60-70 के आसपास का score. So you have to think in the manner which is going to increase your energy instead of becoming your, I would say, own enemy by instilling negative thoughts. You have to understand. So I have mentioned it here and I'm telling you, the worst thing anybody can do with themselves is instilling those negative thoughts. I did not do the things earlier. I've not given the mock test. I was not performing well in the mock test. Class Adha I did not do. I did not do the homework. I don't know what's going to happen. So you are reminding yourself that you are a fool and you haven't utilized the earlier time well. And now what's destined is that you're going to fail. Instead of that, you can be a smart person. Fine, whatever I did so far, I am going to revise that well. And 4 दिन में let me just try my best कि मैं जितने major topics cover कर लूँ. और ठीक है ना, अगर नहीं भी हुआ तो I'll talk to ma'am now and maybe she helps me out at this point of time and tell me these are the important things, you just do this much and that's fine. So what you need to control is your mindset. So you have to first promise me, my dear children, will you do that? Then also I'm going to tell you the ways you can handle all this. But yes, do you promise me that you're going to handle your mindset for the next few days? I think you will have nearly 14-15 days till your last paper of economics. Will you control your mindset and make sure that you remain positive and keep this light? Yes or no? I want this assurance from each of you despite of anything happening. तुम कोई क्वेश्चन करते करते भूल गए, स्टिल यू हैव टू रिमाइंड मैम सेड नॉट टू वरी. अगर तुम कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो और भूल गए, मैम सेड नॉट टू वरी. कोई पेपर में लग रहा है कुछ छूट रहा है, मैम सेड नॉट टू वरी. So that is what needs to trigger in your brain all the time, not to worry. I will handle it. It's all fine. It's all fine. Now, why am I emphasizing so much कि यार पेपर छूट भी रहा है तो it's all fine? या मैं क्यों इतना emphasize कर रही हूँ कि एक बड़ा portion नहीं revise किया, still it's all fine? It's because you are not writing an ordinary exam. You're not writing an exam of 12th standard or 10th standard. You are writing CA foundation. Those children who write CA foundation are generally in the age bracket of 17 to 19 or maybe 20 at most अगर मैं पकड़ूँ तो. So now when children are very close to this age, everybody is more or less facing the same situation. Some may be from CBSE board, some may be from ISC board, some may be from IB, some may be from state board, but more or less because we are in the same age group, we have some difference, only little bit difference, not major difference. They also have that pressure, you also have that pressure. So it's basically about handling the pressure well. I have seen so many children who got 90 and 95 plus in their 12th standard.
are not able to clear foundation, and I know children who had 60s and 70s and they still could clear. So you have to understand that it's important that how we are handling the pressure. That's one. And second, you are not writing an ordinary exam. It's the toughest exam, one of the toughest exam that's there in India and even in world. So when you are writing a paper of that level, it's fine to do this much of mistake and be not, not doing the 100% and a little less than that. So that's acceptable. Number two, passing requires 40% in each subject, and overall you need to make 50%. So in accounts, when you are attempting your paper and in your question paper, when you go through the content, you find that, my God, this question has come and this was the question that I did not do and I left it. 20 marks question, for example. तो सबसे पहली बात तो द पेपर इज ऑफ 120 मार्क्स माय डियर चिल्ड्रन. 120 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 20 मार्क्स का ऑप्शनल होता है. फर्स्ट क्वेश्चन यू नो कंपलसरी, आगे के ऑप्शनल. तो यू कैन इवन लीव द पेपर, सो स्टिल यू नो 100 मार्क्स का पेपर. सो नॉट एन इशू. मानो फॉर एग्जाम्पल कि 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स कैसे आ गए जो तुम्हें नहीं आते थे, तो एक 20 तो यूं भी छोड़ ही सकते हैं, और उसके अलावा जो 20 तुम्हें नहीं आता तो भी तुम्हारे पास 80 मार्क्स का पेपर है. अगर तुम अपने अकाउंट्स का जो 80 मार्क्स का है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, फोकस उस पर करते हो, उस 20 को बिल्कुल दिमाग में नहीं लेते, प्रेजेंटेशन रीजनेबल रखते हो कि कोई भी अच्छे से रीड कर सके, वर्किंग नोट्स अपने बनाते हो, सबसे बड़ी चीज सिली मिस्टेक नहीं करते. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. सिली मिस्टेक नहीं करते. तो यार तुम सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तुम वर्किंग नोट सही बना रहे हो, तुम 80 मार्क्स का उतना पोर्शन मेजरली सही अटेम्प्ट कर रहे हो. मैंने बच्चों को देखा है कि वो 80 नंबर का करके आते हैं, वो 75 भी ले आते हैं, 77 भी ले आते हैं, 78 भी ले आते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है. तो अपन बेयर मिनिमम 70 भी पकड़ो, तो तुम्हारे 70 अकाउंट्स में हुए फिक्स. मत लो इससे ज्यादा का लोड. क्या इतना अगर एक्सट्रीम लेवल पे मैं गया तो लॉ में तुम पहुंचे. Now when you have paper in front of you, for example, वैसे तो you have done so much of practice, but for example you get some new case studies. Okay, now लॉ के पेपर में जाके इन्हें सोचना है मैं क्या पता क्या लैंग्वेज लिखूंगा, इंस्टीट्यूट ने क्या लैंग्वेज लिखी होगी और मैंने कुछ गलत लिख दिया तो ये लोग तो वैसे ही मार्क्स नहीं देते. प्लीज लीव दैट ऑल. तो अब तुम्हारे पास 100 नंबर का पेपर है, उसमें से मानो तुम्हें कोई 20 नंबर की ऐसी केस स्टडीज मिल रही हैं जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये मैंने पहले नहीं देखी थी. फिर सेम गेम है. अब तुम्हें कोशिश लॉ में ये करनी होगी, स्पेशली लॉ में, कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे. यू अटेम्प्ट फुल. तो अगर अपन अटेम्प्ट फुल कर रहे हैं, उसमें से अगर अपन 70, 75, 80 मार्क्स का सही कर रहे हैं, तो यार तुमने थोड़ी कम एवरेज लैंग्वेज भी लिखी है लेकिन अटेम्प्ट पूरा किया है, एक्ट सही पकड़ा है, सेक्शन नंबर सही पकड़ा है, कॉन्सेप्ट सही पकड़ा है. लैंग्वेज इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है तो भी 40-45 आ जाते हैं. तो मैं एक बेयर मिनिमम कहूँ 45 अपन ने लॉ में पकड़ लिए पूरा पेपर लिखने के बाद. मूविंग टू द थर्ड पेपर, मैथ्स. मैथ्स की जब तुम बात कर रहे हो तो मैथ्स के अंदर मैंने तुम्हें हजारों बार कह दिया है, you have to avoid negative marking. So you are quite trained also about it. नेगेटिव नहीं करना है. अब मैं तुम्हें कहूँ मिनिमम पकड़ लो कि तुम 45 से 50 उसमें ला रहे हो, 45 भी पकड़ लो, मैं बिल्कुल लीस्ट लेके चल रही हूँ. पहुंचे तुम इकोनॉमिक्स में, तुम सब काफी रीजनेबल टेस्ट दिए हैं तुम लोग ने इकोनॉमिक्स के, मैं कम से कम भी पकड़ूं, बहुत कम 50 नंबर मान लो, तो भाई 45 होता है 90. 70 मार्क्स आपके अकाउंट्स के हो गए विच मेक्स 160, और 50 नंबर ये हो गए तो भी 210 हो रहा है. ये मैंने तब बोल रही हूँ जब सब में मैंने खींच तान के मार्क्स कम कर दिए हैं एंड दे आर मोर और लेस वेरी क्लोज टू द स्कोर दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इन योर मॉक टेस्ट. सो व्हाई टू वरी, व्हाई टू वरी. आपका जो मॉक टेस्ट पेपर लिया है वो इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड का है, उससे नीचे बिल्कुल नहीं है, तो उसके आसपास ही पेपर आना है. बस दिमाग को शांत रख के स्ट्रैटेजिकली काम करके चलना है कि जो मुझे आता है वो छूटना नहीं है और जो मुझे आता है वो गलत होना नहीं है. बस 2 बातें पक्की कर लो, जो मुझे आता है वो छूटना नहीं है, जो मुझे आता है वो गलत होना नहीं है. अगर इन 2 बातों पे तुमने कमांड कर लिया और अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेकर नहीं आए, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें पास होने से. कोई नहीं रोक सकता तुम्हें पास होने से. भले ही तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट ना भी हुआ हो और तुम किसी भी बैकग्राउंड के हो और किसी भी बोर्ड से तुमने अपना 12 दिया हो और तुम्हारे पुराने में कितने ही अटेम्प्ट लग गए हो, लेकिन ये अटेम्प्ट तुम पास हो रहे हो. यू मार्क माई वर्ड्स, इफ यू कैन कंट्रोल ऑन दिस, सो यू प्रॉमिस मी इन दी चैट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. क्या मैंने 2 बातें बोली? जो आता है वो गलत नहीं होना है, जो आता है वो छूटना नहीं है. ये बात मुझे पक्की करके देंगे सब लोग चैट में, येस और नो, yes or no with full energy, yes or no. तो घबराना नहीं है हमें कि यार मेरे मॉक टेस्ट में कहीं कुछ मार्क्स कम हो गए थे, हो गए तो हो गए,
अब उसी पे तो वर्क करना है ना अपने को। यस मैम, ओके, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। और हमको अपना नाम करना है रोशन, और हमको ये चीज़ चाहिए कि जब थोड़े दिन बाद फरवरी में तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग में रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे पेरेंट्स सबसे ये बात कह सकें, आपको पता है मेरे बच्चे ने फाउंडेशन दिया था अभी इसका निकल गया, फर्स्ट लेवल तो हो चुका है सीए का। तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, बस इस सब चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, लेकिन सब अच्छा करना है, हो जाएगा। सो गुड इज कमिंग वेरी सून। तो अब आप लोग को एक छोटा सा मुझे काम करके देना है, और वो करके देना है अफर्मेशन। अब अफर्मेशन के अंदर ये करोगे तो मैं तुम्हें आगे का बताने वाली हूँ कि तुमको नेक्स्ट 4 दिन में शेड्यूल क्या बारीक फॉलो करना है, जो मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है। करना तुम्हें ये है कि तुम लोग अपने अपने फ़ोन उठाओ, और अपने फ़ोन से, ये मैंने इंटर वालों को भी कराया है, तुम्हें अपना फ़ोन उठाना है और अपने फ़ोन से तुम्हें लेना है अपनी सेल्फी, और अपने लिए एक नोट डालना है, आई एम पासिंग जैन 25 कैफ, और तुम इसको रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तुम उसको कहीं पोस्ट करो, तुम्हें करना है तो तुम कर दो। तुम जिस कंडीशन में बैठे हो, मुंह अपना पलटो, फोटो लो, स्क्रीन पे ऐसा भी दिख रहा हो अफर्मेशन, और तुम्हें लिखना है अपने लिए, आई एम पासिंग सीए फाउंडेशन जैन 2025, और इसको तुम्हें अपने सामने रखना है, वॉलपेपर लगा देना है अपने मोबाइल का। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा, आई एम, ऊपर वाले ने चाहा, प्रिटी श्योर अबाउट इट, कि तुम्हारी सक्सेसफुल की मार्कशीट के साथ तुम ये फोटो लगाओगे कि ये मेरी कंडीशन थी एंड सी आई डिड इट। तो यू हैव टू पुट इट फॉर योरसेल्फ, डू इट राइट नाउ एवरीबॉडी, फटाफट से। तुम्हें वीडियो ऑफ करना है तो यू कैन टर्न इट ऑफ, डू इट एंड टेल मी इन द चैट, तो ही मैं आगे जाऊंगी और तुमको बताऊंगी आगे कैसे क्या करना है। चलो जल्दी जल्दी, गुड। करने के बाद डन इन्फॉर्म करो, और कोई मकारी नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्विक, गुड। ऑल राइट, दैट्स नाइस, वेरी नाइस, गुड। चलिए साहब, तो अब हम आ रहे हैं, हमारा शेड्यूल 8th से लेके 11th तक, कल 8, 9, 10, 11, 4 दिन है, 12 को हमारा पेपर है। तो आपका शेड्यूल ये स्क्रीन पे है, आप उसको लिखे नहीं, आपको मैं फाइल शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। सिर्फ आप सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, मैंने कैसे करके क्या शेड्यूल आपके लिए ड्राफ्ट किया है। देखिए बेटे, मैंने पार्टनरशिप को ऐसे लमसम में नहीं रखा है कि पार्टनरशिप करने बैठो और करते जाओ, क्योंकि उसमें फिर पूरा दिन चला जाएगा और हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं। तो आपको पार्टनरशिप का कल फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेकअप करना है, जो इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल्स होता है और गुडविल, और आपको टोटल 2.5 घंटे में उसको करना है। आप लोगों के पास, सबके पास लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उस लिस्ट में जो मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए, बात खत्म, और कॉन्सेप्ट कर लीजिए, वो आपके रजिस्टर में लिखा है। देन 9th को आप यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, दीज टू यू विल टेक अप। 3 घंटे का टाइम यू आर गोइंग टू गिव, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, एंड यू आर गोइंग टू सम इट अप। कॉन्सेप्ट रजिस्टर से कॉन्सेप्ट करके लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चंस कर लो। 5 और 6, 5th और 6th यूनिट पार्टनरशिप का 3 घंटे का टाइम है। तो ये 3 दिन में तुम्हारी पार्टनरशिप यहाँ हो जाएगी क्लोज। देन कंपनी में सबसे पहले यू हैव टू टेक अप शेयर्स। नाउ यू गाइस हैव एन आइडिया कि शेयर्स में अराउंड पेपर में 15 मार्क्स के आसपास तक का आ रहा है। कंपल्शन नहीं है कि 15 का आएगा ही, बट जनरल ट्रेंड देखो तो 15 का दिख रहा है। दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, दे कैन इवन गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, बट वी आर पिकिंग इट अप इन प्रायोरिटी। शेयर्स आप उठाएंगे और शांति से 2 घंटे करने वाले हैं आप, डू इट। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले जब सेशन रखा था तो इम्पोर्टेंट एरिया बता दिया था। जिन बच्चों को लगता है कि यार वो अपना जो बड़े क्वेश्चन होते हैं एकदम बड़े वाले, वो परफेक्ट नहीं कर पाते, तो वो बच्चे ज़्यादा पैनिक ना करें, वो कर ऐसा लें कि जो बेसिक एंट्रीज होती हैं, जो आपकी इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज, एसपीआई की एंट्रीज, वो अच्छे से सीख लो। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बात को गौर से सुन लो। बात नंबर 2, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स अच्छे से कर लो, और उस पर इंटरेस्ट अच्छे से कर लो। तो ये दोनों सिंपल एरिया है। इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा तुमसे नहीं भी अगर हो पाता बाय चांस, वैसे ज़्यादातर से हो पाता है, लेकिन बाय चांस नहीं भी हो पाता तो एटलीस्ट रिफंड वाला केस तो कर लो ओवर सब्सक्रिप्शन का। कैश बुक बनाना तुम्हें आना चाहिए कि कैश बुक कैसे बनती है और अपना जर्नल एंट्री कैसे होती है, साथ में जर्नल प्रॉपर। इसके बाद 4 फीचर के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जिनमें सिर्फ 4 फीचर और रेशो की एंट्री करनी होती है, वो वाले क्वेश्चन कर लो। अगर तुम फुल फ्लेजेड नहीं कर पाते तो इतना तो कम से कम कर लो। ये उनके लिए है जिनका परफेक्शन नहीं है।
बाकी आपकी कोशिश होना चाहिए कि जो मैंने लिस्ट दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो आप पूरी निपटा लें शेयर्स की, तो दैट विल बी ग्रेट। आएंगे आगे, डिबेंचर का इशू एंड रिडेम्पशन, अगली डेट पे 2 घंटे का टाइम देके आप ये करने वाले हैं। अगला राइट्स एंड बोनस, ये आपको पता है इट्स अ छोटा टॉपिक, एंड प्रेफरेंस शेयर इज अगेन अ छोटा टॉपिक, दोनों मिला के 1.5 घंटे का टाइम मैंने अलॉट किया है। उसके बाद आपका यहाँ कंपनी और पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। यहाँ आप डिप्रिसिएशन उठाने वाले हैं कल ही, 2 घंटे का आप टाइम देंगे। यहाँ आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज उठाओगे, 1.5 घंटे का टाइम दोगे। इन्वेंट्री 1.5 आवर। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यू विल पिक अप टुमारो 2 आवर्स। यहाँ फाइनल अकाउंट्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 2 घंटा। एनपीओ 3 घंटा। जर्नल एक छोटा टॉपिक रखा है मैंने 45 मिनट्स, उसको भी करोगे आप, उस पर भी कई बार 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डू इट प्रॉपर्ली फ्रॉम योर रजिस्टर। लेजर और ट्रायल बैलेंस 30 मिनट्स का टाइम देखिए यू आर गोइंग टू कंप्लीट। सब्सिडियरी बुक्स 30 मिनट्स का टाइम देखिए यू विल कंप्लीट। तो ये जो 3 दिन है, इनमें मैंने अप्रोक्सीमेटली हर दिन का 9 घंटे का शेड्यूल बनाया है। एक बार हम चेक कर लें, ये 2 4 6 7 8 और ये देखो तो 9.25 घंटे का है। आपकी पढ़ने की एक दिन की क्षमता आई होप अभी तक 12 घंटे की कम से कम हो गई हो। तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पे अराउंड 3 आवर्स पढ़ोगे लॉ। 3 आवर्स आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पढ़ने वाले हो लॉ। अब आप लॉ में क्या पढ़ोगे, तो आप पहले दिन मतलब कल आप इसमें कोशिश करो कि आप अपना कंपनीज एक्ट को कंप्लीट कर लो। 3 आवर्स में कंपनीज एक्ट हो सकता है, तो ट्राई दैट यू कंप्लीट इट पैरेलली, ताकि एकदम से लॉ के पेपर के टाइम ज्यादा प्रेशर ना हो। अब आप आइए 9th को, इधर 3 5 6:30 7:30 8:30 और ये एग्जैक्ट 9 घंटे बैठते हैं। यहाँ 3 आवर्स का आप टाइम दीजिए और 3 आवर्स का टाइम देके आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए अपना पार्टनरशिप, जितना भी हो जाए, फुल ना भी हो पाए तो एटलीस्ट जितना भी हो जाए। अब आप आइए 10th को, तो ये 3 और 3 6 और 9 और 9.5 घंटे, तो आपके पास 2.5-3 घंटा यहाँ बच रहा है अराउंड। इसमें आपका बचा हुआ पार्टनरशिप और आपका एलएलपी आप यहाँ कंप्लीट कर लें। ऐसा करने से आपके लॉ के 3 चैप्टर्स भी साथ में रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको एकदम अकाउंट्स के पेपर के बाद पैनिक नहीं होगा। कुछ हद तक ये रिवाइज हो गया होगा तो टाइम इसमें वहां सेव हो जाएगा। देन 11th को आपको फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 1 घंटे में करना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 3 घंटे में करना है। ट्रू फॉल्स मैंने पहले भी कहा था, बहुत एम्फसाइज करके फिर से कह रही हूँ, मॉड्यूल के सारे चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स 2 घंटे का टाइम देके फटाफट से आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। कैश बुक आधे घंटे का टाइम आप इसमें दे लेंगे। थियोरी के लिए गिव 1.5 आवर का टाइम और थियोरी ओवर पूरा गो थ्रू करो। बीआरएस 1 घंटे का टाइम दे लो। ये पूरा जो है दिस इज लाइक अराउंड 9 आवर्स के आसपास। और आपको मॉक टेस्ट पेपर लिखना है 3 घंटे का टाइम लेके। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तुमने ऑलरेडी 3 पेपर लिख लिए, मैंने तुम्हारे साथ 3 पेपर्स और डिस्कस करे हुए हैं, तो 6 पेपर करे हुए हैं। उनमें से कोई भी पेपर टेकअप कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और 3 घंटे में लिखोगे, 3.25 में नहीं। 15 मिनट हम कम कर रहे हैं रीडिंग की, 3 आवर्स में यू हैव टू राइट पेपर। अब मैम ये पेपर लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगले दिन जब तुम लिखोगे तो तुम्हें पैनिक नहीं होना चाहिए। तुम्हारी एक दिन पहले से वो रिहर्सल हो जाना चाहिए कि यार मैं 3 घंटे के अंदर पेपर कितने हद तक कर पा रहा हूँ। आप समझ गए मेरी बात? तो वो प्रेशर एग्जर्ट ना हो एकदम से आपका दिमाग पे एग्जाम में कि यार मैं पहले क्या करूं फिर क्या करूं। इसीलिए आप यहाँ पे एक पेपर 3 घंटे में जरूर लिखेंगे, ताकि आप हैबिट आ जाए। तो इसका इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू टेक इट, और बाकी तो आई विल शेयर द फाइल इन द ग्रुप आल्सो। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल? छोटे टॉपिक भी हो गए, बड़े टॉपिक भी हो गए, मैंने रीजनेबल टाइम सबको दे भी दिया है। अब हम जा रहे हैं आगे। एवरीबडी ओके? डू यू फील दैट दिस इज यूजफुल? क्लैरिटी हो गई सबको एकदम? किसी को कोई शक? नो शक। चलो इधर आओ। अब आती है 12 की सुबह। 12 की सुबह आपका पेपर का टाइमिंग क्या है? आपका पेपर का टाइमिंग है 1:45। आपका क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2 बजे तक आपका रीडिंग टाइम होता है। 2 से लिखना शुरू होता है। 5 बजे तक आपका राइटिंग टाइम होता है। ये आपका पेपर का टाइमिंग है। आप बच्चों, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सेंटर क्या आया है, आपको कोशिश ये करना चाहिए नंबर 1 कि इफ पॉसिबल आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। प्रेफरेबल मैं कह रही हूँ,
गाड़ी चलाना आपको आती है वो एक अलग बात है, लेकिन हम पेपर के थोड़े प्रेशर में होते हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई बेतुकी गाड़ी चला के सामने से आ रहा है और अपन जाके भिड़ जाएं, तो अपने साथ ऐसा ना हो। तो अपन जितना अपने आप पे प्रेशर कम एक्सर्ट करें वो बेटर है। इफ पॉसिबल नहीं हो पाए तो खुद जाओ और संभाल के गाड़ी चलाओ। 12 बजे के आसपास तक निकल जाइए, डिपेंडिंग ऑन कितना दूर है आपका सेंटर। आपको एग्जाम सेंटर पे कोशिश ये होना चाहिए कि 1:15 तक आप मैक्स पहुंच जाएं। ये अपने पास आप लिख लीजिए, मैं मजाक मस्ती की बात नहीं कर रही, इट्स समथिंग वेरी सीरियस। सेंटर आप पहुंच जाएं आधा घंटा पहले। पहले दिन की बात स्पेशली कर रही हूँ, आपको देखना पड़ता है कॉलेज जो है उसमें आपका कौन सा रूम नंबर आया है। इतनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, एग्जैक्टली किस बिल्डिंग में आपका रूम है, सीट कौन सी है, तो उसमें हौच पौच ना हो। इसलिए आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाएंगे तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। 1:15 तक एवरीबडी शुड रीच सेंटर। और ये टाइम तुम्हारा पेपर लिखने का, वो रीड करने का है, तो रूम में 1:30 बजे तक पहुंच जाओ। 15-20 मिनट बाहर खड़े हो, टहलो, हवा लो, और 1:30 बजे तक आप अंदर हो जाइए, ताकि आप टाइमली क्लास में सीटेड हो। पेपर इतने बजे शार्प एंड हो जाएगा। अब मैं आ रही हूँ पीछे। मॉर्निंग में आपको करना क्या है, आपको आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर गो थ्रू करना है। देखिए, वैसे तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर हमारा बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जो थ्योरी पार्ट मैंने लिखवाया हुआ है, आपको उसको गो थ्रू करना है कि यार क्या क्या मैम ने लिखवाया है, ये आप गो थ्रू कर लें। इनका पूरे चैप्टर्स का ना हो पाए तो जो चैप्टर तुम्हें स्पेशली टफ लगते हैं या लगता है इनमें मेरी गड़बड़ हो जाती है, एटलीस्ट उन चैप्टर का कॉन्सेप्ट रजिस्टर गो थ्रू कर लो। बात नंबर 2, जब तुमने ट्रू फॉल्स करे हैं पहले, उनमें तुम्हें जो टफ लगते हैं या लगा था इधर मेरी गड़बड़ हो रही है, उन मार्क्ड ट्रू फॉल्स को कर लो। और बात नंबर 3, एनी मार्क्ड क्वेश्चन, अगर तुम्हें लगता है किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा अलग था, हटके, और मैं भूलता हूँ, मार्क करा हुआ होगा, तो तुम्हें अगर एक बार ओरली वो देखना है तो वो देख लो। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप 12 बजे निकल रहे हैं, आप मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक सुबह अपनी पढ़ाई करेंगे, इससे बाद नहीं। 11 के बाद आप पढ़ाई नहीं करेंगे सुबह, और 11 से लेके 1:45 बजे तक आपके सामने कोई किताब नहीं आना चाहिए। आप सेंटर पे पहुंचे, कोई आपसे कुछ भी सवाल पूछे, इस चैप्टर में क्या था, उसमें क्या था, ये क्या, वो कुछ भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल पढ़ाई को अपने आप से दूर कर देना है। मैम ऐसा क्यों? आप जितना एंड मोमेंट में डाल रहे होते हैं ना, तो ये चल नहीं रहा होता, लेकिन घबराहट बढ़ रही होती है। ये आ गया तो अरे ये पॉइंट तो मैंने देखा ही नहीं था, ऐसा होने लगता है। हमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं शेक करना है। तो आप 11 बजे जितना पढ़ लिया खत्म करो। 1 घंटे में क्या ही पढ़ लेंगे, जितना इतने महीनों में नहीं पढ़ पाए, 1 घंटे में क्या हो जाएगा, तो आप वहीं छोड़ दीजिए। सेंटर पहुंच जाइए। आप कोई प्रेयर कर सकें अगर, आप वो करके घर से निकलिए। अपने लिए दुआ करें, अच्छे से पॉजिटिव बातें सोचें, अपनी जर्नी सोचें, मैंने इतना कुछ पढ़ा था, आगे का सोचें, कल को मैं पास हो जाऊंगा। गाने सुन लीजिए। आप अभी तक नहीं कहा होगा मैंने आज तक, लेकिन आप गाने सुन लीजिए। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई भी डिंचैक म्यूजिक लगाओ, मस्त गाना सुनो। गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर से, तो नाचते हुए जाओ और खुश होकर एग्जाम सेंटर में जाओ। ये इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतनी चीज अपन ने मॉर्निंग कर ली। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक भी सब क्लियर हो गया। अब आती है बात पेपर के बाद की, वो बता दूं, फिर पेपर में डिटेल में क्या करना है वो बताती हूँ। 5 बजे तुम वहां से फ्री हुए, बाहर निकलते करते 5:15 हो जाता है जो भी। स्पेशली मैं ये बात लड़कों से कहूंगी, इवन लड़कियों से भी, आपका बाय चांस सेंटर पे कोई दोस्त मिल जाता है, बोलता है भाई एक काम करते हैं यार, ठंड का टाइम हो रहा है, चाय पीते हैं, फिर घर चलते हैं। आप ये फालतू लफंगगिरी नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ मैं। आप एग्जाम सेंटर से निकले, आपको सीधे घर आना है, सीधे। और आपको अपनी मम्मा को ये बात कह देना है कि जब मैं घर आऊं तो आप मेरे को 5:30 5:45 तक प्लीज खाना मेरे लिए रेडी रखिएगा, क्योंकि आपने दोपहर का खाना नहीं खाया होगा। खाना वो रेडी रखें। आप चाय पीते हो, जूस पीते हो, जो भी पीते हो, आपने खाना खाया जितना भी आपसे खाते बना, और उसके बाद आप अराउंड 6 बजे के आसपास तक आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप रेस्ट करने के लिए लेट जाइए। और आप यू गेट अप बाय 8 मैक्सिमम 7:45 यू शुड गेट अप। तो आपको नींद आए ना आए, आपको ये घबराहट हो रही है अगला पेपर लौका है, मैं पढ़ने बैठ जाऊं, डू नॉट डू दैट स्टूपिडिटी। हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी हैज टू बी इन सिंक विद द टाइम दैट इज अवेलेबल। उल्टा काम नहीं होना है कि एनर्जी है नहीं बॉडी में और अपन बैठ गए पढ़ने के लिए, जो जो उसमें गलत काम हो जाएगा। 8 बजे तक नाउ यू हैव टू सिट ऑन योर स्टडी डेस्क एंड देन बिगिन विथ योर लॉ। और मैं 8 बजे के आसपास ही तुम्हारा सेशन रखने वाली हूँ। तो तुम्हारा 12 को शाम को, रात को 8 बजे के आसपास सिर्फ मैक्स टू मैक्स में रखूंगी 15-20 मिनट का सेशन। इसमें मैं तुम्हें ये बता दूं कि लॉ में पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और कितनी देर में क्या करना है। सो यू विल गेट अ शेड्यूल लाइक दिस।
ताकि यू डू नॉट हैव टू थिंक कि मैं पहले क्या पढ़ूँ फिर क्या पढ़ूँ, जो मैम कह रही है बस वैसा मैं करके आगे बढ़ जाऊँ। आगे मेरी बात आपको ये भी समझ में? तो अपने पास यहाँ पे इवनिंग में एक सेशन होने वाला है 8 बजे, ठीक है? तो यहाँ आप मुझे मिलेंगे और बाकी यहाँ मॉर्निंग अपन मिलने वाले हैं। मैं टाइम आपको एग्जैक्ट बता दूंगी, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पे अपन 10-15 मिनट मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ थोड़ा सा प्रेयर करेंगे एंड देन यू गो फॉर योर सेशन exam. I think this is all absolutely fine. Without taking much time, I'm getting in the paper now. How to attempt your paper. The first 15 minutes. What do you have to do in your first 15 minutes? What we need to do. Everybody can have a different strategy. One thing that I will tell you is कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स वाला, उसको आप फटाफट मेंटली कर लो, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आपका ये काम 10 मिनट में हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट आपका आगे का टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई के 10-1 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लो। दूसरा काम आपको जो अब करना है, आपको फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस को ऐसे सरसरे तौर पे रीड करना है। व्हाट डज दिस मीन? जस्ट ऊपर ऊपर से कि वो किस चैप्टर के हैं और वो चैप्टर तुम्हें आता है या नहीं। जस्ट अ मिनट, हाँ, आई विल ओपन वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कुछ भी पेपर मैंने जैसे ही उठाया, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो थ्रू इट लाइक दिस। क्वेश्चन 2 ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक आता है। उसके बाद जैसे ही तुम्हें लगा आता है तो तुम पेंसिल से ऐसे डॉट लगा दोगे। उसके बाद तुम आगे गए, तुमने कहा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में क्या है, कंपनी जो है WDV पे करती है और इस साल का निकालना गेन लॉस ठीक आता है। उसके बाद तुमने नेक्स्ट देखा BRS का क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि कैश बुक बनाओ और फिर BRS ठीक है आता है मेरे को एडजस्टेड कैश बुक, डॉट लगा दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला करने को? पूरा नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, क्या आप बैठ के एक एक लाइन पढ़ रहे हो। आपको सिर्फ ये पकड़ लेना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो डॉट लगाते गए। अब ये करने में तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल लग गया नियरली 10 मिनट का टाइम, इससे ऊपर नहीं लगेगा, 10 मिनट के आसपास टाइम लग गया। अब तुम्हें क्या करना है, आउट ऑफ 2 से 6 तक ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसके मुझे सारे पार्ट्स आते थे। क्या 2 से 6 तक में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसके मुझे सारे पार्ट्स आते थे? तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया अभी, तो इसमें मुझे सारे पार्ट्स आते थे। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले टेकअप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसमें दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो मुझे मानो ये नहीं आता अच्छे से, थोड़ा कम आता है। और ये क्वेश्चन अब ये तुम्हारे सिलेबस में रह नहीं गया, तो मैं इसको हटा के आगे क्वेश्चन देखती हूँ। जैसे ये NPO, तो मुझे ये आता है लेकिन इतना परफेक्ट नहीं, और पार्टनरशिप तो मेरे को आता ही नहीं। तो अभी मैंने कहा यार ये तो ग्रे एरिया है, इसको छोड़ो। फिर मैंने अगला क्वेश्चन देखा, ये मुझे आता है, तो मेरा डॉट यहाँ बना हुआ है, फिर मेरा डॉट यहाँ भी बना हुआ है, तो मैंने इसको ऑर्डर में ले लिया। तो आपको क्या करना है मैं आपको समझा पा रही हूँ शायद अच्छे से। जिस क्वेश्चन में आपकी सबसे ज़्यादा डॉट्स बने कि आपको ये बेहतरीन आता है, शानदार, आप उसको पहले करोगे, और जैसे जैसे आपको कम आता है वो आप ऑर्डर में बाद में रखोगे। ये आपको क्लियर हो गया है सबको? तो हम पहले क्या क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं? नहीं, हमने 1 को पढ़ इसलिए लिया था ताकि हमें उसकी आंसर्स क्लियर हो जाएं कि ट्रू फॉल्स क्या। और एक और स्मार्ट काम कर सकते हो तुम इसमें, तुमने वो जो 6 क्वेश्चन पढ़े ट्रू फॉल्स में, जो ट्रू हैं उनमें तुम डॉट लगा दो, फॉल्स को छोड़ दो। जो ट्रू है उन पर डॉट लगा दो, फॉल्स को छोड़ दो। समझे मेरी बात? तो क्या होगा ना, तुमको सेकेंड टाइम में फिर से पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें क्लिक कर जाएगा, वो शुरू में तुमने निकाल दिया आंसर। तो स्पेलिंग मत लिखना ट्रू, सिर्फ डॉट लगा देना अगेंस्ट ट्रू, और जो फॉल्स है उसको छोड़ देना। अब आपको करना ये है कि शुरू के 1 घंटे में से आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हो। कहाँ पे? ये तो रीडिंग टाइम में 15 मिनट हुआ, यहाँ 5 लेना था, अभी 5 मिनट आपने एक्स्ट्रा तकरीबन ले लिए, वो यहाँ लग गए आपके, ठीक है। अगर यहाँ 10 मिनट भी एक्स्ट्रा लग गए शुरू के 1 घंटे में ये प्लानिंग के अंदर, तो भी ठीक है। अब तुम्हारे हाथ में है पूरे 50 मिनट का टाइम, 50 मिनट। अब मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुम्हारे पास 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट अवेलेबल होता है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो तुम्हें एक फुल क्वेश्चन 30 मिनट में निपटाना होता है। तो तुम्हारी फर्स्ट आवर के एंड में कोशिश होना चाहिए दैट यू आर एबल टू डू 2 क्वेश्चंस। वो हो नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट 1.5 क्वेश्चन हो जाए, ये बेंचमार्क रखो अपना कि 1.5 क्वेश्चन कम से कम मेरा होना है। 2 मैम ने कहा है, 1.5 तो हो नहीं है, उससे कम नहीं। अगले 2 घंटे सेकेंड आवर में अगेन यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस। पूरे नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं होता, 1.5 कम से कम होना है। और फिर तुम्हारा जो लास्ट आवर आता है, वो जो कुछ भी बचा है वो उसके अंदर तुम्हें निपटाना है।
तो benchmark for every hour is how much? 2 questions to be done after every hour. 3 जैसे ही बजे 2 क्वेश्चन हो गए, 4 जैसे ही बजे 2 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद हम जो बैलेंस क्वेश्चन है लास्ट 1 आवर में करने वाले हैं. इज दैट फाइन? क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर में कहाँ लेना चाहिए? शुड इट बी इन द बिगिनिंग? नो. बट शुड इट बी एट द एंड? नो अगेन. यू कैन टेक इट समवेयर इन बिगिनिंग एट द थर्ड पोजिशन. थर्ड पोजिशन पे क्वेश्चन नंबर 1 को टेकअप करो और उसको वहां निपटा लो, क्योंकि छोड़ना नहीं है, वो वैसे भी कंपल्सरी क्वेश्चन है. आई होप दिस इज ऑल फाइन. क्या बोल रहे हो? टेंशन कम हो गई? मैं पढ़ नहीं पाई थी उस टाइम, मैसेज अभी चेक कर रही हूँ. सारी टेंशन कम हो जाएगी, घबराना नहीं है. ये हो गया अपना काम. अब अपने पास मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, आप लोग मुझे बताइए चैट में कि आपको क्या लग रहा है, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है. सिली मिस्टेक नहीं होना है. सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है? ज़ीरो कम ज़्यादा लगा देना, कैलकुलेटर पे गलत कैलकुलेशन करना, बेवकूफ़ों की तरह डेबिट की चीज़ क्रेडिट में लिख देना, क्रेडिट की चीज़ डेबिट में लिख देना. ऐसे काम नहीं करना है. और आपको अपनी कॉपी में इस चीज़ का खास ध्यान रखना है. ये ऐसी आपकी वर्टिकल कॉपी मिलती है, तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ ऐसे लिखें. क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे लिखना पड़ता है आपको, और आपको फिर उसका जो भी पार्ट है वो लिखना है, और इसको आप यहाँ भी लिखिए. आप लोग ऐसा नहीं करते, दैट्स अ प्रॉब्लम. और आपके पास अगर लास्ट में इतनी सी लाइंस बची हैं, तो यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट मत करिए. आपके पास अगर थोड़ी लाइनें बची हैं, तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए. क्वेश्चन 2B बॉक्स में डालिए. आपके क्वेश्चन नंबर सही से नहीं दिखते, दिस इज प्रॉब्लम विद मेनी ऑफ यू. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, दैट शुड बी विजिबल. इज दैट फाइन? उसके अलावा वर्किंग नोट्स आप बना के चलें. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी क्वेश्चन पे टाइम एक्सीड ना करें. मतलब मैम क्या? जैसे मैं आपको बोलूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास अभी पीछे एनपीओ का था. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है. 10 मार्क्स इंटू 1.5 मिनट, 15 मिनट इज द स्टैंडर्ड टाइम. आप इसको कर रहे हो, आपका 15 मिनट हो गए, आपका थोड़ा क्वेश्चन बचा है, आपने 18 मिनट तक भी ले लिए, 20 मिनट भी चलो बड़े क्वेश्चन में ले लिए, तो चल जाएगा. आपका जैसे ही ये एक्स्ट्रा टाइम खत्म होता है, आपको इसके बाद इस क्वेश्चन को छोड़ देना है. आपको बैठ के बैलेंसिंग और टोटलिंग नहीं करनी. आपके बैलेंसिंग और टोटलिंग करने से शायद 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन इससे आपका आगे का बहुत सारा पेपर छूट सकता है. तो अगर बड़ा क्वेश्चन है, उसमें आप 3-4 मिनट 5 मिनट तक एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकते. उससे ऊपर टाइम एक्सीड करेगा तो आप क्वेश्चन को उसी लेवल पे छोड़ दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे. मत करो बैलेंसिंग, मत करो टैली, इट्स फाइन. क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप सही है तो मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये बात को दिमाग में अपने को रख के चलना है. डू नॉट टेक टू मच टाइम on any specific question. I hope that's making complete sense and you guys are going to take care of the same. ठीक है, ये हो गई हमारी बात. इसके अलावा ये मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई 12th इवनिंग हम 8 बजे के आसपास मिलेंगे and we'll be doing our discussion. Do you have any questions? If I have not taken up anything that may trouble you, so you may ask. वैसे तो I have tried to think like everything from the point of view of a CA foundation student, but still if anything is missing. You have not asked, but it just got in my head. What are the things that you have to carry? See, listen one thing. What I will do is, if possible, as early as possible, I'll be putting this video on YouTube so that you will share the link with your parents and you will tell them to see it. They should have been with you right now, but कई बार ऑफिस में होते हैं तो इसलिए I did not want to trouble them. Ask them to see it over the next 4 days. Why is it important? So that वो जो भी essentials हैं, अगर गलती से प्रेशर में टेंशन में तुम कुछ मिस कर रहे हो तो वो तुम्हें रिमाइंड कर देंगे. तो उनको बोल देना कि वो सुन लें. कहीं कहीं हो सकता है टू मच ऑफ इंग्लिश जा रही हो, किसी पेरेंट को थोड़ा इशू हो, तो वो थोड़ा आगे हिंदी करके देख लें. तो मैं मिक्स चलती हूँ वैसे भी, तो वो उनके लिए और तुम्हारे लिए बेसिकली काम का रहेगा. जब तुम एग्जाम जा रहे हो तो तुम्हें क्या लेके जाना है अपने साथ, प्लीज लिख लो. सबसे पहली बात, टेक 2 कैलकुलेटर्स ऑफ सेम कंपनी. अगर आपको एक और खरीदना पड़े तो आप खरीद लीजिए. 2 कैलकुलेटर्स ऑफ सेम कंपनी. दूसरी बात, यू विल टेक योर एडमिट कार्ड with you, and also one copy of it should be with someone in family who can bring in the case of emergency. Somebody who can bring in the case of emergency कि तुम्हारा एडमिट कार्ड इधर उधर हो गया,
किसी दिन फॉर एग्जाम्पल 4 दिनों में से तुम भूल गए ले जाना, तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास तुम्हारी एडमिट कार्ड रखा हो, कि तुम सेंटर से कॉल लगाओ और वो भाग के तुम्हारे लिए एडमिट कार्ड लेके आ जाए। तो प्लीज कीप दैट प्रोविजन। नेक्स्ट, you need to carry at least 2 black pens because we write with black pen, so do not write with blue गलती से भी जाके पेपर में ब्लू को लिख के कट लगा दो, इट हैज टू बी ब्लैक पेन। कैरी 1 or 2 pencils with you, format you should make with pencil, don't scribble and make it dirty with pen। कैरी स्केल with you, एक बड़ा एक छोटा में भी, या जो भी तुम्हारे हिसाब से चाहिए, तो कैरी स्केल with you। other than that, if I say carry one identity card with you, you never know when you are going, समटाइम्स ऑन द वे कभी कोई पुलिस वाला रोक ले कुछ है, तो यू हैव योर आईडी कार्ड कि भाई दिस इज माय आइडेंटिटी कार्ड। इन द एग्जाम हॉल कोई इशू आता है तो यू हैव योर आईडी कार्ड, तो दैट शुड एग्जिस्ट विथ यू। शुड यू कैरी एनी रजिस्टर विथ यू फॉर एंड मोमेंट रिविजन? द आंसर इज एन एब्सोल्यूट नो, बिल्कुल नहीं। प्लीज कैरी बॉटल विथ यू, इफ पॉसिबल try to put something which can give you energy, maybe like glucose in it, या कुछ भी उसके अंदर डाल के, ताकि उसको तुम पियो बीच में तो थोड़ा हाइड्रेटेड फील करो। 3 घंटे में ये मूर्खता मत करना कि तुम पेपर बस लिखे जा रहे हो परेशान होके, 1 घंटे का बाद 2 मिनट रुक के पानी पी लेना। और जब पानी पियो तो ऐसा नहीं कि पेपर पे ढुलक दो, शांति रखनी है दिमाग में, तो संभाल के पानी पियो। थोड़ा सा आँख बंद करके 2 मिनट रुक सकते हो, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में कोई बहुत कुछ जाएगा। 2 मिनट अच्छे से पानी पियो, ऊपर वाले की से पीते पीते दुआ कर लो, थैंक यू इतना पेपर हो गया, आगे प्लीज मदद करके रखिएगा, फाउंडेशन पास होना है। तो 2 मिनट वार्तालाप कर लो और फिर से शुरू हो जाओ अपना पेपर करने के लिए। तो पैनिक नहीं करना है अपने को। अब आपके पास ये चीजें हो गई। इसके अलावा जब आप सुबह निकलें घर से, तो आप प्लीज बहुत हैवी खाना खा के मत निकलिएगा कि मम्मी बोले चलो बेटा तुमको बैठे मस्त पराठा खिला दें, तो ऐसे नहीं करना है। या कोई कोई होते हैं जैसे जो नॉन वेजिटेरियन या स्पाइसी खाना खाने वाले लोग, स्पाइसी मस्त भुना पनीर, ऊपर पूरी उसकी तरी हो रही है, बटर डला हुआ, लो बेटा ये खा के जाओ। खाना खाते में तो चल गया पेपर लिखते टाइम, पूरा का पूरा फ्लेवर उसका गले में आए जा रहा है, पेपर गया एक तरफ, तबीयत खराब होने लगी। तो दैट शुड नॉट हैपन। आप लाइट खाना खा के निकलिए घर से। यू कैन ईट चपाती मे बी 1 मैक्सिमम, और यू गो विथ सम लिक्विड डाइट इफ दैट्स पॉसिबल, कि दूध पी के निकलो, कुछ आलमंड्स खा लो, कैश्यू खा लो, ये चल जाएगा। समझ गए? तो जस्ट गो विथ समथिंग विच इज लाइट एंड गुड फॉर यू। एंड मोमेंट रास्ते में जा रहे हो, रुक के नारियल पानी पीते हुए चले जाओ, दैट वुड बी फाइन। तो कुछ ऐसा आप करके जाइए। ये हो गई आपकी टोटल बात। और कुछ ऐसा जो छूट रहा हो और आपको पूछना हो? एग्जाम हॉल में जाके अटेंडेंस रजिस्टर, इन सब के बारे में, अटेंडेंस रजिस्टर कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक अटेंडेंस रजिस्टर। व्हेन यू गो टू एग्जाम हॉल, व्हाट इज द एग्जैक्ट सीन? द सीन इज, आपको गेट पे जनरली ऐसे क्या पेस्ट करी हुई लिस्ट दिख जाती है जिनमें रोल नंबर्स लिखे होते हैं। तो आपका जो रोल नंबर कार्ड है उसमें देखिएगा आपका रोल नंबर लिखा है, उस रोल नंबर को आप उस लिस्ट में मैच करिएगा। मैच करेंगे तो आपको हॉल नंबर दिख जाएगा। गार्ड जो खड़ा हो उससे हॉल पूछ लेना कि मेरा रूम नंबर या हॉल नंबर कहाँ है, वो आपको बता देगा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पहुंचो। जो लोग कॉलेज के दिखते जाए उनसे पूछ लो कि रूम नंबर कहाँ है, वो पूछोगे वो जगह बता देंगे। कमरे में पहुंचो, इन्विजिलेटर का दिमाग नहीं खाओ, फिर से चेक करो रोल नंबर क्या है, रो चेक करो, वहां जाके बैठ जाओ शांति से, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद वो अटेंडेंस वही हो जाती है, वो लोग तुमसे, अच्छा जो तुम्हारी कॉपी होती है ना, कॉपी आंसर कॉपी, उसमें कभी रोल नंबर किसी बीच के पेज में, ये सप्लीमेंट्री में नहीं लिखते। मैं एक बार तुम्हें यहाँ दिखा दूं, ये देखो, जैसे ये कॉपी है, ठीक है बच्चे की, तो ये कॉपी में ना तुम्हें कभी ये जो पोर्शन होता है यहाँ वो तुमसे रोल नंबर लिखवाता है, तो तुम्हें यहाँ तो लिखना है। और यहाँ डब्बे होते हैं जिसमें तुम्हें ऐसे गोला गोला होता है, तो तुम्हारा रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 17932 6 कुछ ऐसा है। तो ऐसे डब्बे बने होंगे जिसमें यहाँ लिखा होगा 0 1 2 3। तो अब तुम्हारा जो 1 है तुम यहाँ गोला भरोगे। अब इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 2 कर देती हूँ, तो 2 के लिए तुम यहाँ गोला भरोगे। उसके बाद 3 है तो इधर 3 पे गोला भरोगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको रोल नंबर कैसे स्टाइल में लिखवाता है, वो रोल नंबर तो ऊपर लिखवाएगा ही लिखवाएगा, और नीचे आपको एनसर्कल भी करना होता है। तो उसको देख के गौर से करना कि गलत रोल नंबर डाल के आ गए तो किसी और को मार्क्स मिल रहे होंगे, तो उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, उसको आप ध्यान से कर लीजिए। उसके अलावा पेपर के आगे के पन्नों में कहीं पर भी कभी भी रोल नंबर आपको नहीं डालना है, नहीं डालना है।
और जब तुम सप्लीमेंट्री शीट मांगो तो कब मांगना सप्लीमेंट्री शीट? जैसे मैं कहूँ ये बच्ची का ये लास्ट पेज शायद रहा होगा, आई थिंक सो, यस, ये इसका लास्ट पेज रहा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जब आप मेन कॉपी के यहाँ पहुंच गए हो और आपको लग रहा है कि मेरे को आगे चाहिए होगी आंसर शीट, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आप हाथ उठा दो और सप्लीमेंट्री शीट बोल दो, बिकॉज टीचर को आने में भी टाइम लग जाता है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो आएंगे और कभी कभी तुमसे बदतमीजी में बोल सकते हैं कि अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पहले से बोल दिया, तो कहना सॉरी मैम आई टेक केयर, कुछ आर्ग्यू मत करना, क्योंकि कई बार बहुत हिले हुए दिमाग के लोग होते हैं। तुमने पहले से बोल दिया, तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री शीट आ गई, तुम्हें पहला काम सप्लीमेंट्री शीट पे जो करना है वो करना है कि तुम यहाँ पे लिखोगे नंबर 1। ये पहली सप्लीमेंट्री शीट है, नंबर 1 ये लिखना मिस मत करना। जैसी सेकंड सप्लीमेंट्री शीट लो तो उस पर नंबर 2 लिख देना, जैसे ही थर्ड लो तो नंबर 3 लिख देना। रीजन बीइंग, अगर तुमने नहीं लिखा और बाद में जब टाई करने का टाइम आता है, सेकंड पहले लग गई और फर्स्ट बाद में लग गई, तो सब खत्म हो जाता है। जो तुम्हारी एक्स्ट्रा कॉपी होती है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट, उसमें रोल नंबर नहीं लिखा जाता कभी, वो कभी नहीं लिखा जाता। वो लोग तुम्हारे पास आएंगे एक शीट लेके, उस शीट पे वो लिखते हैं रोल नंबर, कॉपी नंबर लिखते हैं, तो बस जो वो बोले वो कर देना काम। लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी तुम्हें रोल नंबर नहीं लिखना होता, एक्सेप्ट ऑन दी फर्स्ट पेज, except on the first page. I think that's making complete sense. Is that fine? Any other thing? कोई भी दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आए तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। बाकी अपन लोग 12 की सुबह को मिलेंगे, तब जो भी क्वेश्चन लगे वो पूछ लेना, घबराना मत। कोशिश करके ये चलना कि यू गिव लिटिल टाइम टू प्रेयर ऑन एवरीडे बेसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई दैट यू डू इट, क्योंकि उधर थैंक यू करते रहो और उधर से मांगते रहो तो यू डोंट नो द पावर इज सुप्रीम, दैट्स हाउ इट इज। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम्हारा टेंशन थोड़ा कम हो गया हो एंड यू आर वेरी क्लियर how you need to approach ahead, and just take care, and I'm pretty sure that you guys are going to rock in your exam. हाँ या ना? ये दिल से आना चाहिए आवाज़। और अपना वॉलपेपर चेंज करके मुझे फोटो खींच के भेजना कैसा वॉलपेपर लगाया है, झूठ नहीं कि बोलो हाँ 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 कर लिया, फोटो खींच के भेजना कि मैम डन है। ठीक है, ओके चलो मेरा बच्चा, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, खुश रहो। मोस्ट वेलकम, बाय बाय बाय, टेक केयर।